فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ پرجا بھون میں پرجا وانی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے اپنے مسائل کو چیف منسٹر ریونت ریڈی سے واقف کروانے کے لیے ریاست بھر سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں عوام کی ایک بڑی بھیڑ حیدرآباد کے بیگم پیٹ میں جمع ہو گئی۔ لوگ 15 دسمبر کی صبح سے ہی قطار میں کھڑے ہیں۔ بیگم پیٹ کے پرجا بھون سے پنجا گٹا چوراہا تک لوگ قطار میں کھڑے ہیں۔ لوگ سڑکوں پر کھڑے ہونے سے ٹریفک جام ہو گئی۔ وہ خود چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرنے اضلاع سے بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ کچھ لوگ جمعرات کی رات سے انتظار کر رہے ہیں۔ عوامی سماعت صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ہوگی۔ ریاست میں کانگریس کی حکومت آنے کے بعد پرگتی بھون کا نام بدل کر پرجا بھون کر دیا گیا۔ سی ایم ریونت ریڈی نے عوام کے مسائل جاننے کے لیے پہلی بار پرجا دربار کا بھی اہتمام کیا۔ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ ہزاروں لوگ شکایت کرنے آئے ہیں۔ حکومت نے پرجا دربار کا نام بدل کر پرجا وانی رکھ دیا۔ اس کے علاوہ ہر منگل اور جمعہ کو عوامی سماعت ہوگی۔ صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک شکایات لی جائیں گی۔ صرف ان لوگوں کو اجازت ہوگی جو صبح 10 بجے تک لائن میں ہوں گے۔ معذوروں اور خواتین کے لیے الگ الگ قطار کا انتظام کیا گیا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے 8 ارکان نے اسمبلی میں حلف لے لیا۔ گوشا محل کے ایم ایل اے راجا سنگھ، کاما ریڈی کے ایم ایل اے وینکٹ رمنا ریڈی، عادل آباد کے ایم ایل اے پائل شنکر، نرمل ایم ایل اے ایٹلی مہیشور ریڈی، سرپور ایم ایل اے ہریش بابو، مدھول ایم ایل اے رام راؤ، پوار پاٹل اور آرمور کے ایم ایل اے پیڈی راکیش ریڈی کو اسپیکر گڈم پرساد کمار نے حلف دلایا۔ 10 دسمبر کو 101 ایم ایل ایز نے حلف لیا تھا۔ چونکہ اے آئی ایم آئی ایم کے ایم ایل اے اکبر الدین اویسی پروٹیم اسپیکر تھے، اس لیے بی جے پی کے ایم ایل ایز نے ان کے ہاتھوں حلف نہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ اسمبلی میں گڈم پرساد کمار کے اسپیکر منتخب ہونے کے بعد بی جے پی کے ارکان اسمبلی نے ان کے ہاتھوں حلف لیا۔ قابل ازیں عبوری اسپیکر کی حیثیت سے اکبر الدین اویسی نے بی آر ایس اور کانگریس کے چند ارکان کو حلف دلایا۔ ان میں بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے تارک راما راؤ، وزیر امارات وشیوارے کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی، سابق وزیر کڈیم سری ہری، ایم ایل اے پدما راؤ گوڑ، پاڑی کوشک ریڈی، کتا پربھاکر ریڈی اور پلا راجیشور ریڈی شامل ہیں۔ واضح ہے کہ تارک راما راؤ نے ارکان اسمبلی کو حلف دلانے کے پہلے دن اپنے والد اور سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی سرجری کے باعث اسمبلی حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ اسی طرح بی آر ایس اور کانگریس پارٹی کے 9 منتخب ارکان بھی کونسل اور پارلیمنٹ کی رکنیت سے مستعفی نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان ارکان نے اسمبلی میں حلف نہیں لیا۔ سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ آج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے پاؤں پھسل کر گر جانے کے نتیجے میں انہیں حیدرآباد کے یشودا ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کے کلے کی ہڈی کی تبدیلی کا آپریشن کیا۔ وہ تیزی کے ساتھ روبہ صحت ہو رہے تھے اور ڈاکٹرز کی نگرانی میں چلنے کی پریکٹس کر رہے تھے۔ کل ڈاکٹرز نے مکمل طبی معائنوں کے بعد انہیں آج گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اب سے کچھ ہی دیر قبل کے سی آر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر پہنچے۔ ہاسپٹل کے پاس ان کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد موجود تھی، جبکہ گھر پہنچنے پر ان کا روایتی طریقے سے استقبال کیا گیا۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے مسقط کے لیے عمان ایئر کارگو سروس کا آغاز ہوا ہے۔ حیدرآباد سے B737-800 BCF دوپہر 2 بجے روانہ ہوئی۔ پرے پینیکر چیف ایگزیکٹو آفیسر GHIAL نے کہا ہے کہ عمان ایئر کارگو کے آغاز کے ساتھ 88 میٹرک ٹن کارگو کا اضافہ ہوگا۔ منگل اور ہفتے کو دوپہر 2 بجے عمان ایئر حیدرآباد سے مسقط کے لیے روانہ ہوگی۔ حیدرآباد سے انڈوں کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اس سروس سے عمان، امریکہ اور یورپ میں فارما سروسز میں بھی اضافہ ہوگا۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے پھلوں اور سبزیوں کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ GMR کارگو فارما انجینئرنگ، آٹو موبائل، ایرو اسپیس کی صنعتوں میں کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو خدمات فراہم کرتا ہے۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے استفسار کیا کہ وہ کانگریس پارٹی کے وعدوں پر عمل آوری کے لیے فنڈز اٹلی سے لائیں گے یا AICC آفس سے لائیں گے، اس کی وضاحت کریں۔ عبوری اسپیکر سے حلف نہ لینے کا اعلان کرنے والے بی جے پی کے 8 ارکان اسمبلی پہنچے۔
स्पीकर असेंबली बी प्रसाद कुमार ने उन्हें असेंबली रुकनीत का हलफ दिलाया, जिसके बाद राजा सिंह बीजेपी के दीगर अरकान असेंबली के साथ मीडिया पॉइंट पर खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बीजेपी की जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने अवाम से झूठे वादे करते हुए इख्तिदार हासिल किया है। इन वादों को पूरा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जाते जाते सरकारी खजाना पूरी तरह से खत्म कर दिया है और रियासत तेलंगाना को 5 लाख करोड़ रुपए का मखरूज बनाया है। पहले की फलाही स्कीमात को बरकरार रखते हुए कांग्रेस के वादों पर अमलावरी के लिए फंड्स नहीं है। अब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अवाम से वजाहत करेंगे कि इन वादों की तकमील के लिए फंड्स इटली से लाएंगे या फिर AICC ऑफिस से लाएंगे। राजा सिंह ने कहा कि हमने उबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ पर असेंबली की रुकनीत का हलफ न लेने का ऐलान किया था, उस पर कायम है। अवाम से किए गए वादे को पूरा किया है। बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिसको आखिर तक ले जाएंगे। अवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए हुकूमत पर दबाव बनाएंगे। बीजेपी के रुकन असेंबली A महेश्वर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी अपोजिशन का तामीरी रोल अदा करेगी। अवामी मसाइल को ऐवान में मौजूद बहस बनाते हुए उनकी यकसुई के लिए जिम्मेदाराना रोल अदा करेगी। कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार हासिल करते होते ही प्रगति भवन को स्टडी सर्कल में तब्दील करने का वादा किया था, जिससे मुनहरिफ हो गई हैं। रैतु बंधु स्कीम में कटौती करने की सख्त उन्होंने मजम्मत की है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने कहा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC की जानिब से हर साल जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स व्हाइट पेपर्स की तरह ही हैं। मीडिया के नुमाइंदों के साथ एक गैर रस्मी बातचीत में रामाराव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इस ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया कि वो जल्द ही अहम शोबों जैसे बरखी और फाइनेंस पर व्हाइट पेपर्स जारी करेगी। साबिक वजीर KTR ने कहा कि BRS ने CAG और PAC रिपोर्ट्स की शक्ल में हर साल व्हाइट पेपर्स जारी किए हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस ने अवाम को ऐसे तयखुनात देते हुए फरेब दिया है जिन पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं है। हैदराबाद की नुमाइश का 21 जनवरी को आगाज होगा, जो 15 फरवरी तक जारी रहेगी। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर V सुतेंद्र ने बताया है कि नुमाइश के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल स्टॉल्स के लिए ज्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। नुमाइश में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, इंटरनल सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी इंतजामात जारी हैं। बुजुर्ग अफराद और ऐसे अफराद जो चलने फिरने से कासिर हैं, उनके लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नुमाइश मैदान के अंदर कार और ऑटो रिक्शा के जरिए दाखिले की सहूलत फराहम रहेगी। इस दौरान नुमाइश में स्टॉल्स लगाने का भी काम मुकम्मल शुरू हो चुका है। सीनियर IAS ऑफिसर सुमिता सबरवाल ने कहा है कि वो कहीं नहीं जा रही हैं, तेलंगाना कैडर में शामिल रहेंगी। हुकूमत उन्हें जो भी जिम्मेदारी देंगी वो इसको बखूबी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। सुमिता सबरवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सेंट्रल सर्विस में जाने की कोशिश करने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और ऐसी अफवाहों की मजम्मत भी की। BRS हुकूमत में सुमिता सबरवाल चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। फिलहाल वो महकमे आपाशी की इंचार्ज प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं। रियासत में हुकूमत की तब्दीली के बाद उन्होंने अभी तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात नहीं की और न ही महकमे आपाशी प्रोजेक्ट्स के जायजा इजलास में शिरकत की। उनकी चीफ मिनिस्टर और जायजा इजलास से दूरी पर ये अफवाहें फैल गई थी कि वो सेंट्रल सर्विस को रवाना होना चाहती हैं और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को दरख्वास्त भी दे चुकी हैं। इन अफवाहों पर सुमिता सबरवाल ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो कहीं नहीं जा रही हैं, तेलंगाना कैडर में शामिल रहेंगी। Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक मथुरा की शाही ईदगाह पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का हालिया फैसला इंतहाई अफसोसनाक और खतरनाक नताइज का हामिल होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे की इजाजत देकर न सिर्फ 1991 की इबादतगाहों से मुताल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि ये फैसला हिंदू और मुसलमानों के दरमियान 1968 में हुए इस मुआहदे के भी खिलाफ है, जिसके तहत मुकामी हिंदू और मुसलमानों ने
13.37 एकड़ जमीन ईदगाह और मंदिर के दरमियान तकसीम कर ली थी। ये मुआहदा श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के दरमियान हुआ था, जिसके मुताबिक 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्म भूमि को और 2.5 एकड़ जमीन मस्जिद के हवाले की गई थी और ये बात तय पाई थी कि ये तनाज़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह बाबरी मस्जिद तनाज़े के दौरान 1991 में मरकजी हुकूमत ने इबादतगाहों से मुतालिक एक कानून मंजूर किया था ताकि इस तरह के तमाम तनाज़ात से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल किया जाए। इस कानून के मुताबिक मुल्क की आज़ादी 15 अगस्त 1947 के वक्त जिस इबादतगाह की जो हैसियत थी वो अली हाला बाकी रहेगी। उम्मीद की जा रही थी कि अब कोई नया तनाज़ा नहीं पैदा किया जाएगा, लेकिन जिन अनासिर को मुल्क में अमन व आतिशी से बैर है, वो जो हिंदू व मुसलमान के दरमियान मुनाफिरत पैदा करके अपने सियासी मुफादात की तकमील चाहते हैं, वो शायद ऐसा नहीं होने देंगे। बोर्ड के तर्जुमान ने शाही ईदगाह ट्रस्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया। इसमें उसने कहा कि वो इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में ईदगाह ट्रस्ट की भरपूर मदद करेगा और इसकी लीगल कमेटी हर तरह की कानूनी मदद पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी हलाल मुसद्दक़ा मसनूआत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। हुक्मरान जमात एकनाथ शिंदे की शिवसेना धड़े और हिंदू तंजीमों के एमएलएस ने यह मुतालबा किया है। इस मुतालबे को लेकर महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को खत लिखा गया है। महाराष्ट्र मुखन्नना के सरमाई इजलास के दौरान शिवसेना शिंदे धड़े के एमएलएस प्रताप सरनाइक, मनीष कायदे और हिंदू जन जागृति समिति ने वज़ीर आला को खत लिखा है। इस खत में उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी लगाई जाए। शिवसेना रहनुमाओं और हिंदू तंजीमों के इस मुतालबे के खिलाफ मुस्लिम रहनुमाओं और मौलानाओं ने एहतजाज किया। इस हवाले से वारिस पठान का कहना था कि हुकूमत गैर जरूरी तौर पर किसी न किसी मामले को अहमियत दे रही है। उनका कहना है कि हुकूमत हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रही है। हलाल सर्टिफिकेट पेशगी दिया जाता है। हुकूमत हिंदू तो वोट बैंक की सियासत कर रही है। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी ने इस सिलसिले में कहा कि हुक्मरान पार्टी के एमएलए के मुतालिबात और हिंदू तंजीमों के मुतालिबात के बाद महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। चीन ने कहा कि आर्टिकल 370 पर हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिंदुस्तान चीन सरहद के मगरबी हिस्से पर इसके दावे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसमें मरकज लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग करने और इसे बनाने का मंसूबा बना रहा है। एक यूनियन टेरिटरी फैसले को बरकरार रखा गया है। लद्दाख को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका बनाने के हिंदुस्तानी हुकूमत के फैसले की सदाकत को बरकरार रखने की अदालती फैसले के बारे में पूछे जाने पर चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान ने नामा निगारों को बताया है कि चीन ने कभी भी लद्दाख के नाम निहाद मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके को तस्लीम नहीं किया है, जिसे भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी तरीके से बनाया है। चीन की सरकारी मीडिया कंपनी की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में नंग ने कहा है कि भारत के घरेलू अदालती फैसले से भारत चीन सरहद के मगरबी हिस्से के हकायक नहीं बदलेंगे और ये हमेशा चीन का ही रहा है। आर्टिकल 370 की दफात को मनसूख करने के मरकज के फैसले को बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि कश्मीर के मसले पर चीन का मौक़िफ़ वाज़े और मजबूत रहा है। उन्होंने कहा कि देरीना मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर सलामती कौंसिल की करारदादों और मुतालिका दो तरफा मुआहदों के मुताबिक पुरअमन और मुनासिब तरीके से हल करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मरकजी हुकूमत के आर्टिकल 370 की दफात को मनसूख करने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने साबिक़ा रियासत जम्मू और कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके लद्दाख को साबिक़ा रियासत जम्मू और कश्मीर से अलग करने के मरकज के फैसले को भी कानूनी करार दिया और जम्मू और कश्मीर के मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके को जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा देने और अगले साल 30 सितंबर तक असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।